Hello students, how are you? Today I am going to explain the important extract from the chapter Going Places. As I have explained in Going Places about a character whose name is Sophie. There are few characters. Once again I am repeating. Sophie, Jancy, Danny Cassie, Geoff and Sophie's father. In this chapter, I have described about Sophie, a young teenage girl from a lower middle family. Lower middle family, a teenage girl whose name is Sophie, and she is a daydreamer. Daydreamer, it means a person who sees dream in a day. His family and his friends tried their best just to make Sophie understand not to see such dreams in day. उसके मित्र, भाई, पिता, सब लोग उसके नेचर के बारे में जानते हैं, सोफी के बारे में, कि सोफी एक दीवा स्वप्न देखने वाली एक लड़की है। गोइंग प्लेसेस इस चैप्टर में, और उसके माँ बाप, पिता, भाई, सहेली उसको समझाते हैं। सहेली का नाम होता है जेंसी, कि वह इस प्रकार के सपनों को न देखे। But she is determined. She doesn't care when there are different explanations. And at last what happens? Her dreams are broken. उसके सारे सपने टूट जाते हैं। तो इसी में से इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट को मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में, which are very important to all of you. आइए एक्सट्रैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। They wouldn't make you manager cities ever seen. यह दिस लाइन, इस लाइन को आप, तो what happens? Line, I am explaining, reading the line, and you mark this line in your book. They wouldn't make you manager straight off, so I will be like Mary Quant. Sophie said, I will be a natural. They will see it from the start. I will have the most amazing song this city is ever seen. तो this city is ever seen, city is ever seen, ये वर्ड हमने लास्ट में लिखा है। And they wouldn't make you manager, यहाँ से शुरुआत है, इसको आप मार्क कर लेना किताब में, बुक में। ये दोनों की कन्वर्सेशन है, जेंसी और सोफी, while they are coming back from their school. On the way they are talking to each other. Sophie is saying that they wouldn't make you manager straight off, so Jancy, who is the friend of Sophie, is suggesting Sophie. Jancy सोफी को समझा रही है कि वो तुम्हें डायरेक्ट मैनेजर नहीं बनाएंगे। आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट, सोफी से। लेकिन सोफी जेंसी की बात को नहीं सुनती और बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं मैरी क्वेंट की तरह बनूंगी। आई विल बी ए नेचुरल, दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, और वो देखेंगे। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग सॉन्ग, पूरी दुनिया देखा होगा, यानी इस दुनिया का सबसे खूबसूरत अगर कोई दुकान होगा, कास्टली कोई दुकान होगा, वो शॉप होगा, तो वो शॉप मेरा होगा। ये कौन बोलता है? सोफी बोलती है। कंटेंट आपकी समझ में आ गया? सोफी, जेंसी। सोफी इज अ टीनेजर गर्ल who is addicted to see the dream in a day.
Jancy, who is the friend of Sophie, suggesting her not to see such kind of dream. But Sophie doesn't agree, and she is determined. On the contrary, Sophie is saying that I will one day make a beautiful and costly soap which has not been made by anyone in the whole city. पूरे शहर में कभी कोई ऐसा दुकान नहीं होगा, ऐसी दुकान मैं एक दिन खड़ी करूंगी, कॉस्टली। अब आइए हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हु इज द स्पीकर इन द फर्स्ट लाइन? हु इज द स्पीकर इन द फर्स्ट लाइन? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जेंसी, जियोफ, सोफी, नन ऑफ दीज। तो वेरी क्लियर है कि दे वुडंट मेक यू मैनेजर, ये सब झाई जा रही है लाइन। तो इधर आंसर भी हमने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है, जेंसी। इसका सही आंसर क्या होगा? जेंसी। यानी जेंसी सोफी को समझा रही है कि तुम मैनेजर नहीं बन सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज दिस कन्वर्सेशन टेक प्लेस? आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, इन द बिगिनिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड that this is the conversation between Jancy and Sophie when they are coming back from their school. On the way, both are talking to each other. तो when does, क्वेश्चन कर रहा है कि when does this conversation take place? ये conversation कहाँ होता है? इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है कि this conversation takes place while coming home from school। घर आते समय, स्कूल से घर आते समय एक कन्वर्सेशन दोनों का चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस कन्वर्सेशन टेल अस अबाउट सोफी? इस कन्वर्सेशन से जो बातचीत चल रही है, इस कन्वर्सेशन से क्या पता लगता है? टेल अस अबाउट सोफी, सोफी के बारे में। यानी ये कन्वर्सेशन सोफी के किस आदत को बता रहा है? दिस कन्वर्सेशन बिटवीन सोफी एंड जेंसी। तो थ्रू दिस कन्वर्सेशन विच काइंड ऑफ कंसेप्ट डू यू कम टू नो अबाउट द नेचर ऑफ सोफी? तो फर्स्ट क्या है कि सी इज अ गुड प्लानर, वह एक अच्छी योजना बनाने वाली है, प्लानर। शी इज कॉन्फिडेंट अबाउट हर गोल्स, या वो अपने टारगेट गोल को लेके कॉन्फिडेंट है। शी इज ए डे ड्रीमर, या वह एक डे ड्रीमर है, दिन में सपना देखने वाली। या शी इज अ प्रैक्टिकल, या वो एक प्रैक्टिकल गर्ल है। इनमें से आपको कौन सा कन्वर्सेशन में कौन सा ऑप्शन सही है? यू कैन गेस, इट्स वेरी इजी। तो यार आंसर है सोफी, शी इज ए डे ड्रीमर। वह क्या है? डे ड्रीमर है। शी इज ए डे ड्रीमर, दिन में सपना देखने वाली है। ख्याली पुलाव, कैसल इन एयर, शी मेक्स कैसल इन एयर, हवाई किले बनाने वाली है। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा कि शी इज ए डे ड्रीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए ध्यान देते हैं। तो शी इज ए डे ड्रीमर, और ये भी गलत है आपका। शी इज ए कॉन्फिडेंट अबाउट हर गोल्स, वो अपने गोल को लेके कॉन्फिडेंट है। तो इस तरह की कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। आप खुद को उड़ने का सपना देखने लगे कि आपके पर निकल जाते, आप हवा में उड़ने लगते, तो इसको कॉन्फिडेंट नहीं कहते, गलत है। दूसरी, शी इज ए डे ड्रीमर, वह दिन में सपना देखने वाली है, दिस इज द राइट ऑप्शन। एंड शी इज प्रैक्टिकल गर्ल, वह एक प्रैक्टिकल गर्ल है, ये भी गलत है। तो आपका सही ऑप्शन शी इज ए डे ड्रीमर
इसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। सी का थर्ड, सी इज ए डे ड्रीमर। अब डी पे आ जाइए। हु विल बी लाइक मैरी क्वेंट, मैरी क्वेंट की तरह कौन होना चाहता है? तो कन्वर्सेशन में आपने साफ देखा है, यू हैव क्लियरली स्टडीड इन द लाइन्स ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट दैट Jancy and Sophie, when they both are talking, Sophie is saying that I will be like Mary Quant, मैं मैरी क्वेंट की तरह बनना चाहती हूँ। अभी तो राइट आंसर यू कैन गेट, हु विल बी लाइक, डी का देख लीजिए, सोफी विल बी लाइक मैरी क्वेंट, सोफी मैरी क्वेंट की तरह बनेगी। अब देखिए, a word from the extract which means wonderful, इस extract को मैंने I have not written all the lines due to lack of space, but you can mark it. The line starts from they wouldn't make you manager. From this line, editing line, cities reversing. So here your question is, in this extract a word from the extract, इस extract में एक word ऐसा है which name wonderful, जिसका मतलब क्या है? wonderful। तो आप देखेंगे amazing, इसमें amazing एक word दिया है जिसका मतलब क्या होता है? amazing song। she is saying that I will have the most amazing song, Sophie is saying that I will have most amazing song। अमेजिंग शॉप एक ऐसा शॉप होगा जो बिल्कुल, शॉप मीन्स दुकान, एक ऐसा खोलने का ख्वाब देख रही है जो जिस तरह का दुकान किसी शहर में कोई अब तक खोला नहीं होगा। इसी बात पर उसको जेंसी सजेस्ट कर रही है कि ये सपने देखना छोड़ दो। राइट, तो नेक्स्ट, नेम द लेसन from which this extract has been taken। इस तरह के 60 क्वेश्चंस जब भी आप एक्सट्रैक्ट करें तो you will have to mark the extract from your book and you will have to study about the lesson so that you can easily understand the statements, you can find out clues from the word from the given extract, then only you can be aware, you can only find out the lesson's name and also its chapter's name। So here you find that your this lesson is going places। So many extracts are here, I will explain more extracts, you will have to mark these extracts in your book। Next extract starts, mark it and find out the line। He was kneeling on the floor, he was kneeling on the floor in the next room, tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet। He was 3 years out of school, an apprentice mechanic, traveling to his work each day to the far side of the city। He was almost grown up now, and she suspected areas of his life about which she knew nothing, about which he never spoke। He said little at all, even voluntarily। Words had to be priced out of him like stones out of the ground। तो दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट को यू विल हैव टू मार्क, यू विल हैव टू फाइंड आउट एंड क्वेश्चंस आई एम एक्सप्लेनिंग, यू हैव टू राइट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन, whom does he stand for in the first line। फर्स्ट लाइन में जो ही है वो किसके लिए बताया गया है? योर आंसर विल बी जियोफ के लिए, जियोफ जो उसका भाई है।
वो उसी के भाई के बारे में वो लड़की की बातचीत चल रही है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर्क इज जियोफ इनटू? जियोफ किस तरह का काम करता है? आंसर है अप्रेंटिस मैकेनिक, वह एक मैकेनिक का काम करता है। नेक्स्ट, वेयर वाज जियोफ्स वर्क प्लेस? जियोफ का जो वर्क प्लेस है वो कहाँ पर है? इन द फार साइड ऑफ द सिटी, शहर से दूर, शहर से काफ़ी दूर इसका वर्कशॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलंटरली मीन्स? आंसर है इसका प्रोसीडिंग विलिंगली और फ्रॉम वंस ओन चॉइस। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर? इसका ऑथर कौन है? A.R. Barton is the author. A.R. Barton is the author. Next, give an antonym of spirit. एक वर्ड लिखा है स्प्रिट, स्प्रिट का एंटोनिम आपको बताना है। एंटोनिम कंप्रेस, COMPRESS। स्प्रिट का जो एंटोनिम उल्टा अपोजिट वर्ड कंप्रेस, COMPRESS और एब्रीज, ABRIDZ। So students, dear students, I have explained two extracts from the chapter Going Places, whose writer is A.R. Barton. You have to write down, you have to mark these extracts, you have to color these extracts in your book and find out many questions will be there. So, okay, thank you.